Yesterday, one of you asked me why we use lambda functions. We have discussed first practical yesterday, and many of you have implemented it and posted on our group. All of you should implement it. It is expected to complete all the assignments. We have seen how we can define lambda functions, and you told me different lambda functions. So today I will tell you where and how we use lambda functions. So to understand that, we have to discuss map function. Map is also one kind of function. Is this slide visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. So what map function do? It takes a list and it takes a function, applies this function to each element of the list, and we get a new list. Applies some function or same function to each element of a sequence, returns the modified list. If we want to apply f to all the elements of this list, then we can use map function. For example, see the square function. This function will take list 1 as a parameter, and to this list 1, all elements of list 1, we want to apply the function square. So hence one empty list 2 is taken. For every number in list 1, we want to take its power, means we want to calculate the square of the number. So num in list 1. So first number in list 1, its square calculated and appended into list 2. Then second number, its square calculated and appended into list 2. And third number, its square in list 2, and so on. How many numbers are there in list 1? This loop will iterate that much number of times. And finally, we are returning list. This is square function, which takes a list and calculates the square of every element of the list and returns the new list. If we want to call the function square and want to print list 2, then square, and this list is passed and it is printed. So what will printed? What will be the output of this code? 16941. Okay, like this, 16941. Like this? Yes. No, it is a list. It is returning a list. So list will be printed. There is a difference between this one and list. So we will get this output, 16, 9, 4 and 1. One list is taken, function applied, and modified list is printed. Normal function is this. Now, if we want to use lambda function for this, then we have to write lambda function. We know that we write lambda, then parameter, colon, and return type. Okay, so lambda function for this list will look like this. This is the list N4321, and this one is returning one value, x. This x is parameter, and then square of that parameter is calculated, and this function is applied to every element of this list n. So value of x for first time will be 4. Then this function will calculate and return 16. Next time this will take value 3. Then this function will calculate its square and return. Next time value of square of 2 and square of 1.
So this is function. This is function. We want to apply this to this list, and this is done by the function map. Map will apply this function to every element of this list. And we don't want to return individual elements. We want list. Hence it is given into the constructor of the list. So this is a list function which returns a list. What map function? It returns a modified list where every element is applied this function. And finally, we want to print this list. So if you see here, there are number of lines. This will give the same output, no problem, but the functionality or the compact code you are getting here. So this is the use of the lambda function. In this case, we are not saving just a number of lines, but we are saving identifiers also. See, list 1, n is used there, list 2 is not used, num is not used, then square is not used. Only x and n, 2 identifiers are used. So number of lines are represented in a compact way, and for this purpose we use lambda function. There is more compact way than this that I told you yesterday, known as list comprehension. In list comprehension इससे भी सिंपल आ जाता है. यहाँ पर हमें कुछ मैप, लिस्ट, लैम्बडा कुछ भी यूज नहीं करना पड़ा है. प्रिंट किया है जस्ट, और क्या प्रिंट करना है? लिस्ट प्रिंट करना है. इन n में से एक एक एलिमेंट लेना है. वो एलिमेंट जाएगा x में, इसलिए फॉर लिया है, फॉर x इन n, और वो जो x है उस पे ये अप्लाई कर दिया है. तो इसका भी आउटपुट यही आ जाएगा 169,400. Either you use this or use this or use this, you will get same output. Hope you understand the use of lambda function. Okay, there are other functions also like map. There is filter function, reduce function. They also make use of lambda function efficiently. Now we will discuss our second assignment. Yesterday we have discussed first assignment and you have implemented the number guessing program for that. Now we want to develop a program that will learn different types of structures, list and dictionary, list, dictionary and tuples. Today I will tell you list and dictionary. You have to implement these programs and you have to post them on a group right today. And very soon I will tell you the code of the classroom where you have to post all the assignments. आपको list, dictionary और tuple यूज करके दिखाना है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एल्गोरिदम मैंने यहाँ पर दिया है वही आपको यूज करना है. आप कुछ और एल्गोरिदम यूज कर सकते हो. आपको कुछ और एल्गोरिदम यूज करके या डिफरेंट टाइप का आउटपुट लाकर ये लिस्ट डेमोन्स्ट्रेट करनी है, डिक्शनरी डेमोन्स्ट्रेट करनी है, टपल डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो ये एल्गोरिदम ऐसे आ जाएगा. आपको एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो. यहाँ पर L दिया है. उसके बाद आपको N रीड करना है और लिस्ट में एलिमेंट्स रीड करने. और फिर जो पहला एलिमेंट है वो मैक्स नंबर नाम के वेरिएबल को असाइन करके देना है. और फिर हमें ये जो लिस्ट है उस लिस्ट में का मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है. To write a Python program to find the maximum from list of numbers.
हमने कल एक प्रोग्राम देखा था, उसमें हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट किया था, 2-3 नंबर्स दिए थे, उसमें से स्मॉलर फाइंड आउट किया था, नॉट मैक्सिमम, स्मॉलर फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर आपको लिस्ट दी जाएगी, लिस्ट में कुछ वैल्यूज दिए जाएंगे और वहां से आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। इसके लिए स्टैंडर्ड फंक्शन भी है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फंक्शन यूज नहीं करना है। हमें ये एल्गोरिथम से ये यूज करो या कोई भी और एल्गोरिथम यूज करो, आप इसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करो। तो ये एल्गोरिथम है, आपको आउटपुट ऐसे लाना है, एंटर द अपर लिमिट, मतलब कितने एलिमेंट्स है लिस्ट में। सपोज मैंने दिए 6, 9 और 90, तो आउटपुट आना चाहिए मैक्सिमम नंबर इज 90। इस प्रोग्राम के लिए आपको लिस्ट यूज करनी है। आप ये एल्गोरिथम यूज कर सकते हो, आप अपना कोई और एल्गोरिथम यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ ऐसा आउटपुट लाना है। ये हो गया लिस्ट के लिए। और दूसरा प्रोग्राम है डिक्शनरी के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। हमें एक स्ट्रिंग लेनी है, जैसे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, और एक डिक्शनरी लेनी है। उस डिक्शनरी में कीज होंगी ये स्ट्रिंग में के कैरेक्टर्स, तो स्पेस भी हो सकता है, और वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर। इसका एल्गोरिथम, आप एक स्ट्रिंग इनपुट करो, एक स्ट्रिंग रीड करो, एक डिक्शनरी ले लो, और फिर स्ट्रिंग में का एक एक कैरेक्टर लेकर डिक्शनरी में डालते जाओ। अगर कैरेक्टर रिपीट हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पर एक एल्गोरिथम दिया है, यू कैन फॉलो इट। ऐसा आउटपुट हमें चाहिए, जैसे स्ट्रिंग दी, एंटर अ स्ट्रिंग स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, द कैरेक्टर्स एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर। जैसे यहाँ पर ए नहीं है, तो पहला लेटर सपोज ई आता है, तो ई हो गई की और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। उसके बाद अगर मैंने सी लिया, ई से पहले सी आता है, तो सी आएगा। अब सी हमारे पास दो इसमें है, स्मॉल भी है, अपर भी है, तो 1, 2, 3 और 4। तो अपर केस या लोअर केस हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी के लिए हमें 4 मिलना चाहिए। आपको पता है कि ये जो कीज है ये सॉर्ट हो जाती है, तो सी ई से पहले आ जाएगा। तो डिक्शनरी के लिए हमें ये प्रोग्राम करना है लैब के लिए। मैम ओके, अपर केस काउंट करना है लोअर केस? व्हाट मैम अपर केस काउंट करना है या लोअर केस काउंट करना है? दोनों करने। अगर आपके ये आपका प्रोग्राम डायरेक्टली काउंट नहीं करके देगा, तो आप पहले सारे अपर केस लेटर्स लोअर केस में कन्वर्ट कर लो और फिर काउंट करो। अभी एस जो है ना, तो एस की फ्रीक्वेंसी करनी, तो अपर केस हो या लोअर केस हो, तो एस को वो 3 टाइम कंसिडर करेगा। तो आपको अगर लगता है तो स्ट्रिंग को एक केस में कन्वर्ट कर लो, कोई भी अपर केस में कर लो या लोअर केस में कर लो। ई कितनी बार आया है, एस कितनी बार आया है, स्पेस कितनी बार आई है, ये हमें काउंट करना है। ओके, so I will not tell you how to write the program. You write yourself and ask me if any difficulty is there. टपल हम बाद में करेंगे। ये 2 प्रोग्राम्स आपको आज कंप्लीट करने हैं, आज और कल। ओके मैम ये इसके पहले वाला जो प्रोग्राम उसकी पीपीटी दिखाइए, स्क्रीनशॉट लेना। ये वाला यस मैम। ये एल्गोरिदम में वर्क मे नॉट वर्क, आप अपना खुद का एल्गोरिदम भी लिख सकते हो, लेकिन ये आपको गाइडलाइन करेगा कि कैसे करना है। इसका कोड लिखना है ना मैम? हाँ, इसका कोड लिखना है, मतलब इनपुट ले लो, एम्प्टी डिक्शनरी ले लो, लूप ले लो, इंक्रीमेंट करो, ऐसे पाइथन में कोड लिखना है आपको। ओके मैम, हो गया? यस मैम। यस मैम। ये भी एल्गोरिदम देख लिया, ये तो सिंपल है।
Okay. Now we will start discussion on our next topic. Permutations and combinations. Yesterday we have discussed pigeonhole principle, and you have solved some examples also. Today we will go for next topic, permutations and combinations. There are many counting problems we have to solve. For example, यहाँ पर दिया है कि स्टूडेंट्स का ग्रुप है और ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं. इन 5 स्टूडेंट्स में से कोई भी 3 स्टूडेंट्स हमें लाइन में पिक्चर के लिए खड़े करने हैं, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे. दूसरा एग्जांपल दिया है, हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स. 4 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट की कमिटी बनानी है, तो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे. तो बहुत बार हमें ऐसी काउंटिंग करनी पड़ती है. तो कहीं कहीं पर ऑर्डर मैटर करता है और कहीं कहीं पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है. तो जहां पर ऑर्डर मैटर करता है उसके लिए हम कैसे काउंट करते हैं, और जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है उसके लिए हम कैसे काउंटिंग करते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं. Many counting problems can be solved by finding the number of ways to arrange a specified number of distinct elements of a set of particular size, where the order of these elements matters. Many other counting problems can be solved by finding number of ways to select a particular number of elements from a set of a particular size, where the order of elements selected does not matter. आपको ये परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस का कोई आइडिया है? पहले आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा Yes. कुछ है? ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो यू कैन, yes, so you can easily solve the examples then. ये परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस हमें नेक्स्ट यूनिट में लगने वाले हैं. So let us try to learn them. First, we will discuss permutations. To understand permutation, let us see the example first, and then we will see its definition and formula to calculate. In how many ways can we select 3 students from a group of 5 students to stand in line for a picture? And दूसरा क्वेश्चन है, in how many ways can we arrange all 5 of these students in a line for a picture? अब यहाँ पर पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं. In how many ways we can select 3 students from a group of 5 students. स्टूडेंट्स है, हम इसको S1, S2, S3, S4 और S5 बोलते हैं. इनमें से हमें लाइंस क्रिएट करनी है, तो कितने वेज होंगे. जैसे कि सपोज पहली लाइन, पहले 3 स्टूडेंट्स है S1, S2, S3, उसके बाद है S2, S3, S4, then S3, S4, S5 and many ways are there. 3 का स्टूडेंट. अब यहाँ पर पहले हमें ये सोचना है कि ये ओके, ये सोचते हैं पहले कि यहाँ पर जो लाइन बनानी है, स्टैंड इन लाइन फॉर अ पिक्चर, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करती है कि नहीं. अगर ऑर्डर मैटर करती है, मतलब सपोज आपको हाइट के हिसाब से खड़ा करना है, या फिर
रोल नंबर के हिसाब से खड़ा करना है तो ऑर्डर मैटर करती है। ओके, तो सपोज ऑर्डर मैटर करती है तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम ये 5 में से 3 स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? आपने क्या आंसर बोला? आप में से किसी ने तो आंसर बोला ना, नंबर ऑफ वेज 8 मैम 8 8 8 ओके, yes कैन यू एक्सप्लेन हाउ? yes मैम आप ये 2 raised to 3 का सिर्फ नहीं 2:3 नहीं मीन्स मैंने स्टूडेंट लिए 5 1 2 3 4 5 करके और उनके ग्रुप बनाए मीन्स 1 2 3 1 2 4 1 2 5 like this and ओके, तो 8 like ही this ग्रुप बनेंगे 8 क्या? group 8 ही बनेंगे? yes ma'am 8 केले मी ओके बनवू शकतील तर माहित नाही कन्फर्म ओके ओके, एनी अदर आंसर? देखो अब यहाँ पर आप देखो कि पहला जो बच्चा है जो हमें फर्स्ट नंबर पे खड़ा करना है, उसके लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 4 पहले बच्चे के लिए तो 5 में से कितने चॉइसेस आएंगे? पहले बच्चे के लिए 5 5 आएंगे। ओके, अब एक बच्चा जो यहाँ पर खड़ा होने वाला था, जिसके हमारे पास 5 चॉइसेस है, ये तो हो गया। अब सेकंड नंबर पर जो बच्चा आने वाला है, इसके लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 4 मैम 4 है। 4 ओके, अब ये 2 बच्चे यहाँ पर खड़े हो गए। अब तीसरे बच्चे के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 3 3 है। 3 चॉइसेस है। ओके, तो 3 ही बच्चे खड़े करने थे। तो आपको याद होगा यहाँ पर एक रूल लगता है, हमने कुछ रूल्स देखे थे पिछले एक लेक्चर में, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, डिवीजन रूल। तो ये फर्स्ट पोजीशन के लिए 5 चॉइसेस हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? ये जो फर्स्ट नंबर का बच्चा है फर्स्ट पोजीशन के लिए S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे हो जाएंगे ना, वो S1 S2 S3 S4 S5, ये वेज तो पहले बच्चे के लिए हो गए। फिर उसके बाद अगर S1 आ गया यहाँ पर, तो इसके साथ कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? 4 आएंगे। यस, 125 कॉम्बिनेशन आएंगे उसके। 125 कॉम्बिनेशंस आएंगे। ओके ठीक है, एक का आंसर 8 है, एक का 125 है। ओके ठीक है, देखते हैं। अब S1 आने के बाद इसके बाद S2 आ गया, S3 आ गया, S4 आ गया, S5 आ गया सेकंड पोजीशन के लिए। अब थर्ड पोजीशन के लिए अगर S1 S2 है तो कितने चॉइसेस बाकी रह गए? S3 S4 S4 S5 ऐसे यहाँ पर भी 3 ब्रांचेस हो जाएंगी, यहाँ पर 3 ब्रांचेस हो जाएंगी, यहाँ पर 3 ब्रांचेस हो जाएंगी। जैसा ये S1 का था S2 का भी होगा। एग्री? yes तो ये सारे वेज आएंगे ना, तो हम ये यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करते हैं इसके लिए? 5 के बाद Product. 4, 7 के बाद 3, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। और प्रोडक्ट रूल क्या करता है? इनका multiplication मल्टीप्लिकेशन करता है। टास्क है ये हमारा N1 टास्क है, N2 टास्क है, N3 टास्क है। तो N1 परफॉर्म करने के लिए 5 चॉइसेस है, N2 परफॉर्म करने के लिए 4 है और N3 के लिए 3 है। तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कितना आएगा आंसर? 5 into 4 into 3
60 60. 60. अब ये हो गया 60 ways to select 3 students from a group of 5 students. 125 आपने कैसे निकाला था? मॅम एका स्टुडंट सोबत 5 स्टुडंटचे कॉम्बिनेशन घेतल्यानंतर 125 कॉम्बिनेशन बनतात त्यांची, असं घेतलं होतं मी. ओके, आता समजलं ना? हो मॅम. Okay, now if we want now give the answer to the second question. In how many ways can we arrange all 5 of these students in a line? जैसे इसके पास 3 है, आगे का होगा पहले के 5 चॉइसेस, दूसरे के 4, तीसरे के 3, चौथे के 2 और एक फाइनल 15 तो एक होगा 15 मैम 15. हाँ एडिशन करते नहीं 15 नहीं 120 होगा मैम. 120 Yes, 120 हो जाएगा मैम. 120. dot means 120. multiplication. So अगर 5 स्टूडेंट्स है ग्रुप में और 3-3 का अरेंजमेंट करना है तो 60 वेज होंगे, और अगर 5 का अरेंजमेंट करना है तो 120 वेज होंगे. तो ये है एग्जांपल परमिटेशन का. हम इसे लिखते कैसे हैं? टू सिलेक्ट द फर्स्ट स्टूडेंट टू स्टैंड एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन, there are 5 ways. To select the second student in the line, there are 4 ways. To select the third student in the line, there are 3 ways. By product rule, there are 5 into 4 into 3 equals to 60 ways to select 3 students from a group of 5 students to stand in line for a picture. और ऐसे ही आप 5 के लिए लिखोगे तो consequently there are 5 into 4 into 3 into 2 into 1 equals to 120 ways to arrange all 5 students in a line for a picture. So we got the number of ways to arrange the students. So now let us see how can we define permutation. So permutation is nothing but a set of distinct objects in an order arrangement. Let us write it here. A permutation of a set of distinct objects. सेट है लेकिन सेट है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का. तो परमिटेशन, इन ऑब्जेक्ट्स का परमिटेशन मतलब क्या? इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट of these objects. What is permutation then? Permutation is an ordered arrangement. Permutation is an ordered arrangement of a set of distinct objects. We are interested in order arrangement of some elements of the set. An order arrangement of R elements of a set is called as R permutation. ये notation है जो हमें याद रखना है. An ordered arrangement of R elements of a set is called an R permutation.
For example, let S equals to set of 3 numbers 1, 2, 3. So यहाँ पर ordered arrangement, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग order arrangement का. The ordered arrangement let's take 3, 1, 2. एक ऑर्डर है is a permutation of S. जितने भी वेज है उनमें ये जो एक अरेंजमेंट है एक परम्यूटेशन है. और अगर हमने ऐसी अरेंजमेंट ली, द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थ्री कॉमा टू, दो ही लिए 3 में से, ये तो एक परम्यूटेशन था. इनमें से हमने अगर 2 ही एलिमेंट्स लिए तो इसे हम 2 परम्यूटेशन ऑफ एस बोलेंगे. That is the meaning of this statement. Okay? अगर मेरा एक सेट है let S equals to A, B, C, टू परम्यूटेशंस कौन कौन से होंगे? बताओ कौन कौन से होंगे? 9 पर 2 परम्यूटेशन Three, A B आंसर A, A B B C A, B एक है, A comma C A, C, A comma C B comma हाँ. C B comma C B comma C वैसे हम B comma A एक के बाद एक जाते हैं ना. A और B का कॉम्बिनेशन लिया, अभी आप B का या A का पूरा कर लो. B, A, A का हो गया ना. B, A, B, C. हाँ, B C B कॉमा अभी B है ना, तो B का कॉम्बिनेशन लेते, B स्टार्ट में लेते हैं, तो B के बाद A आ जाएगा. B, B C. और C फिर B comma C B B comma कॉमा C C, उसके बाद C C का comma लेंगे. A A, C, B. A C, A B आणि B. ओके, तो ये हो गए 2 परम्यूटेशंस. ओके, कितने आ गए ये 2 परम्यूटेशंस? 6 आ गए. So there are 6 2 permutations of this set with 3 elements. So that is R permutations. यहाँ पर एक थ्योरम है और एक कोरोलरी है जो हमें याद रखनी है. थ्योरम ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, तो हर वक्त हमें ये ऐसे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है. हम कुछ फॉर्मूला यूज करके परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं. एक फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी देख लिया, प्रोडक्ट रूल. उस प्रोडक्ट रूल को हम थ्योरम बोलते हैं. और एक दूसरा फॉर्मूला है जो फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करके परम्यूटेशंस निकालता है, उसको हम कोरोलरी बोलते हैं. तो एक थ्योरम है जो हमें याद रखना है. इफ n is a positive, आप लिख लो ये थ्योरम. इफ n positive integer and R is an integer, with 1 less than or equal to R less than or equal to n, R 1 और n के बीच में है, then there are permutations. आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल P, n means
number of objects or number of elements in a set, and R means a permutation of that particular group. So ये permutation of NR ऐसे लिखा जाता है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, और प्रोडक्ट रूल बोलता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू। ये तब तक हमारा ये R नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो n माइनस आर प्लस वन तक हम ये प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। So then there are, this is the formula to calculate, are permutations of a set we can get with this formula. So एक थ्योरम है और दूसरा corollary है. So let me insert one blank slide here. If n and r are integers with 0 less than or equal to r less than or equal to n, then permutation of n r is calculated using the formula n factorial upon n minus r factorial. ये दोनों theorems और corollary can be proved. ओके, सो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. कुछ एग्जांपल्स में हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है और कुछ एग्जांपल्स में हमें कोरोलरी यूज करनी है. तो प्रोडक्ट रूल अगर फिर से रिविजिट करना है, तो अगर मुझे परम्यूटेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स में से 3 का लेना है, तो n हो जाएगा 5 और r हो जाएगा 3. तो अगर 3 परम्यूटेशंस निकालने हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा. ये अप टू n कितना है 5 माइनस 3 प्लस 1, यहां तक हम जाएंगे. तो ये आ गया 5 माइनस 3 हो गया 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 तक हम यहाँ रुक जाएंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 5 परम्यूटेशन ऑफ 5 इंटू 3. ये हमारा लास्ट एलिमेंट आता है. ये है n माइनस आर प्लस 1. ये है प्रोडक्ट रूल. और ये दूसरा है, अगर मुझे ये परम्यूटेशन निकालना है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. Okay, so we have these two theorems with us. With help of these two formulas, let us try to solve some examples. Write down this example in your notebook. आपको विजिबल है ना एग्जाम्पल? यस मैम. नहीं मैम, Yes, अब दिख ma'am. नहीं रहा है. नहीं मैम. यस मैम. अभी हाँ दिख यस रहा मैम. okay. How many ways are there to select first prize winner, a second prize winner, and a third prize winner from 100 different people who have entered contest?
how many ways are there to select a first prize winner, a second prize winner and third prize winner from 100 different people who have entered contest? आप इसका आंसर निकालो, मुझे बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे लिखना है। आप कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो। मैथमेटिक्स के पेपर में, ये पेपर में हमारे 202 में कैलकुलेटर्स अलाउड है, तो आपको लेक्चर के लिए कैलकुलेटर्स, पेन, पेंसिल, पेज सब 500 Yes. 500 500 ओके। किसका आंसर है 500? रितेश रितेश का आंसर है 500। ओके, रितेश कैसे निकाला आपने ये 500? मैंने थोड़ा मन से किया थोड़ा, मीन्स थर्ड प्राइज विनर जो है हाँ? 100 में से ना, हाँ। नहीं 500 नहीं आएगा मैम। ओके 1 मिनट, आई विल ओके ओके। देखो बच्चों, एक बात बोलनी थी मुझे, अभी मुझे पता नहीं मीटिंग में कितने हैं, मैं देखती हूँ। 37 है। 37 स्टूडेंट्स हैं, 36 है मुझे पकड़ के, एक आपको तो मैम 36 स्टूडेंट्स हैं। 36। ओके, अभी जो मैंने देखा है अब तक, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ बिल्कुल भी बोलते नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो भी है प्रेजेंट क्लास में वो लोग सिर्फ सुनते हैं, और कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला तो वेट करते कि कोई और बोल देगा। ये थोड़ा प्रॉब्लम से हटकर बात बता रही हूँ मैं आपको। तो एक्चुअली ये जो मैथ्स है, जो हम अब पढ़ रहे हैं और हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए सेपरेट पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप सेपरेट पढ़ाई करने भी जाओगे तो आपको इतना समझ में नहीं आता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये क्लास में, ये मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली 8वीं या 9वीं बार पढ़ा रही हूँ। तो ये जो मैथ्स है और ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, अगर आपने बोला कि मैं बाद में कर लूंगा, मैं बाद में कर लूंगी, पढ़कर हो जाएगा, तो ये समझ में नहीं आता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी है। मैंने बच्चों को एग्जाम के लिए, जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसका भी एक हमने प्लान बनाया था। वैसे ही पढ़ाई करने के बाद उनको आंसर लिखते आता था, नहीं तो ये पेपर पास करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि आप आगे जैसे आगे जाओगे, आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा प्रॉब्लम किस मेथड से सॉल्व करना है। उसके लिए 2-3 मेथड्स होती है। एग्जाम में तो ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाते हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर, तो कभी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगता है, कभी सेट थ्योरी लगती है, कभी कौन सा लगता है, कभी कौन प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगती है। तो अलग से अगर पढ़ाई करने का आप सोचोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट जाता है। और हम लोग 2 घंटे क्लास में बैठे हैं, तो ऐसे ही क्या बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ अगर करते जाओगे तो आपको बाद में टाइम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए ऐसे वेट मत करो कि कोई और बता देगा। आपके मन में जो भी आता है, राइट हो, रॉन्ग हो, आता है, नहीं आता है, कम से कम कुछ तो भी आप करो। अगर आपको बोला है कि कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट कर दो। आपको बोला है इसका आंसर क्या आएगा, तो हर एक ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। आप बोलो या ना बोलो, लेकिन नोटबुक में लिखो। फिर उसको आप मिटा दो, बाद में कट कर दो। नोटबुक अच्छे से, बहुत अच्छा रेगुलर जैसे लिखते हैं वैसा नहीं हो सकता है। कहाँ पर कट है, कहाँ पर मिस्टेक्स है, ये हो सकता है, लेकिन यही आपकी प्रिपरेशन है। क्लास जब हम अटेंड करते हैं वही स्टडी है। तो अगर आप 2 घंटे यहाँ पर बैठ रहे हो, 1 घंटा यहाँ बैठ रहे हो, तो फुल माइंड के साथ बैठो। बाद में आपको पढ़ाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपको बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। सो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं उसने हर एक ने ट्राई करना चाहिए। बाद में कर लूंगी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, किसी का आंसर आ गया? 9,70,200. 9,70,200. हाउ? ये किसका आंसर है? पूजा. पूजा चोपड़े. हो. ओके, बर पूजा, can you explain how you found this? येस मॅम. मॅम मी डायरेक्ट परम्युटेशनचा फॅक्टोरियलचा फॉर्म्युला यूज केला. n Okay. फॅक्टोरियल अपॉन How to write this? n फॅक्टोरियल अपॉन n factorial upon n minus r factorial. ये फॉर्मूला यूज किया। तो n क्या है और r क्या है? 100 n is 100 and r is 3. ओके, 100. तो इस फॉर्मूला से ये आंसर आ गया। दिस इज राइट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। तो आप एक तो ये फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो आप प्रोडक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो इसके लिए। बिकॉज इट मैटर्स विच पर्सन विंस विच प्राइज, ये मैटर करता है ना, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, तो ये ऑर्डर है। तो अगर हमने ये सोचा कि नंबर ऑफ वेज टू पिक द 3 prizes winners is a number of ordered selection of 3 elements from set of 100 elements. So this is the number of 3 permutations of set of 100 elements. तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था, फर्स्ट प्राइज की चॉइसेस है 100, सेकंड प्राइज के चॉइसेस है 99 और थर्ड प्राइज के चॉइसेस है 98। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या पूजा ने यूज किया वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोरोलरी। So here we will calculate P of 100, 3 and it is 100 into 99 into 98। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज करो, ये आंसर आ जाएगा अपना 9,70,200, 9,70,200। ओके, let's go Okay. for next. Suppose that there are 8 runners in a race. The winner receives a gold medal, the second place finisher receives a silver medal, and third place finisher receives a bronze medal. How many different ways are there to award these medals if all possible outcomes of the race can occur and there are no ties? अब पिछली बार क्या दिया था, 100 में से 3 प्राइजेस थे। अब यहाँ पर क्या दिया है, 8 रनर्स दिए हैं और वही है, फर्स्ट प्राइज गोल्ड है, सेकंड प्राइज सिल्वर है और थर्ड प्राइज ब्रॉन्ज है। और बोला है कि ये जो रेस है उसमें टाई नहीं होने वाली है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, गोल्ड वाले डिस्टिंक्ट, सिल्वर वाले भी डिस्टिंक्ट और ब्रॉन्ज वाले भी डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर कॉमन आ गया, डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ, तो आउटपुट अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, P ऑफ N कौन सा और R कौन सा? N is 3. so permutation of 8 336. 336 is the correct answer. Is 8 into 7 into 6. So answer is 336 possible ways to award the medals. Possible ways to award the medals. आपको ये लिखते वक्त थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा,
there are 8 runners, there are 3 prizes, so the possible outcomes of the race are, ऐसे आपको डिस्क्रिप्टिव ये लिखना पड़ेगा. अब ये ले लो नेक्स्ट. Suppose that a saleswoman has to visit 8 different cities. She must begin her trip in a specified city, but she can visit the other 7 cities in any order she wishes. How many possible orders can the saleswoman use when visiting these cities? यहाँ पर क्या है? Number of possible paths between the cities is the number of permutations of 7 elements, because the first city is determined, but the remaining 7 can be ordered arbitrarily. 50. 15? 50. 50. Who told this? Ritesh. रितेश, तू खूप घाई करतो. Okay. Okay? Okay, ma'am. 7 into Yes. 6 into 5. 5040. Yes, correct. 5040. ये किसका आंसर है? मैम नम्रता. नम्रता. रितेश, तू सांग 50 कसे काढले, आणि नम्रता तुला पण सांगायचं की 5040 कसे काढले. चुकलं मॅम, मी ते मार्क्स लावलं नाही, होतं. actually, ओके, चुकलं ते मान्य आपल्याला, पण ह्या पद्धतीने तू मी असं केलं मॅम. मी असं केलं होतं की एका सिटी मधून ते चालू करतील, म्हणजे एक सिटी तर कॉमनच राहील, ते चेंज नाही होऊ शकत, आणि 7 सिटी पैकी ते सेल्स म्हणजे ती कोणती पण एक सिटी पिक करू शकते. सो मी केलं की 7 into 7 केलं, की 7 पैकी मीन्स 7 स्क्वेअर किंवा 7 into 7, आणि त्यामध्ये एक टाकला, मीन्स जी स्टार्टिंगची सिटी ती, आणि 49 अदर कॉम्बिनेशन. ओके ओके. सो ये मैंने इसलिए पूछा रितेश कि ये मुझे ये बताएगा कि बच्चे किस एंगल से भी सोच सकते हैं. ओके. आता नम्रता तू सांग की 5040 कसं मॅम काढलं. मी पण असंच केलं, पण यांनी 7 into 7 घेतलं ना, मी 7चा फॅक्टोरियल घेतलेला आहे. ओके. आणि इथे आपण मागे मॅथमॅटिकल इंडक्शन मध्ये पाहिलंय की स्क्वेअर असला तर फॅक्टोरियल पेक्षा छोटा असतो, मोठा असतो, काहीतरी होतं ना प्रूफ मध्ये. तर नम्रताने काय केलं, 1 काय केलं, कॉमन ठेवलं. हो, आणि 7चा फॅक्टोरियल 1 प्लस केलं का हे, असं केलंय का? नाही मॅम, फक्त 7चा फॅक्टोरियल घेतलेला आहे. ओके. 7चा फॅक्टोरियल काढला आणि त्याचंच उत्तर 5040 आलं. ओके. व्हॉट अबाउट अदर्स? 40,032. 40,032. 32. 5040. मैम हाँ हेलो. हाँ हाँ बोलो. 40,000. डिजिट बोलो, डिजिट. ऐसे 4 3 ऐसे बोलो. 40. हाँ 320. 20. ओके. ये किसका आंसर है? विष्णु. विष्णु. ओके. विष्णु, कैन यू एक्सप्लेन कैसे आ गया ये? 8 into 7 into 6 into 5 up to. ओके. 8 into 6, 8 into 7 into 6 up to 1. मतलब आपने 8 फैक्टोरियल निकाला, राइट? 5040 आंसर आता है इसका. 5040. ये किसका है?
ओके, तो हमारे पास 3-4 अलग प्रकार के आंसर्स है, इसमें से कुछ तो भी राइट होगा, एक ही होगा आंसर इसका। ठीक है, तो फिर से हम लोग ये क्वेश्चन ठीक से देखते हैं। सपोज दैट अ सेल्सवुमन हैज टू विजिट 8 डिफरेंट सिटीज, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ऐसे 8 डिफरेंट सिटीज हैं। She must begin her trip in a specified city. इसने जो कहाँ से स्टार्ट करना है ये स्पेसिफाई किया हुआ है। तो सपोज इसको ये वुमन है, उसको बोला गया है कि आपको C1 से ही शुरू करना है, मतलब ये तो डिटरमिन्ड है, ये तो फिक्स है, यहाँ पे चॉइसेस नहीं है। But she can visit the other 7 cities in any order she wishes. इन 7 में से उसको जो भी पाथ सुटेबल लगता है वो चूज कर सकती है। तो यहाँ से ये जो 7 सिटीज है इसके कॉम्बिनेशंस हमें चाहिए। हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स कैन द सेल्सवुमन यूज व्हेन विजिटिंग दिस सिटीज? तो 8 में से ये एक तो छोड़ ही देना है, तो ये 7 बची है, इनमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? Okay, so the number of possible paths between the cities is the number of permutations of 7 elements, because the first city is determinant, but the remaining 7 can be ordered arbitrarily. So we have to take the 7 factorial, and that is 5040 ways for the saleswoman to choose her tour. सो पूजा, नम्रता का आंसर राइट है। विष्णु, आप एक भूल गए कि वो जो स्टेटमेंट है कि एक सिटी उसको दी है वहां से शुरू करना है, तो वो सिटी छोड़नी पड़ेगी। तो 8 फैक्टोरियल नहीं, हमें 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो आंसर इज 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 into 6 up to 1, and answer is 5040 ways are there. Okay, Okay. let's take this example now. How many permutations of the letters A, B, C, D, E, F, G, H contain the string ABC? हमारे पास लेटर्स है A, B, C, D, E, F, G, H और स्ट्रिंग है ABC, तो कितने परम्यूटेशंस आएंगे? बोलो। 720. 720, ये किसका आंसर है? पूजा. पूजा। ओके, एनी अदर आंसर? 336. 336, ये किसका आंसर है? सूरज. सूरज। यस मैम. ओके, एनी अदर? एनी अदर आंसर? जितने ज्यादा आंसर्स होंगे उतना अच्छा होगा। 200. 200 किसका आंसर है? 1200 मतलब 1200। ये किसका है आंसर? चेतना. चेतना। ओके, एनी अदर? 336. ओके, ये तो यहाँ पर है।
ये क्या, कौन कौन बोल रहा है 336 लास्ट में? विष्णु। विष्णु, ओके। मैम 720। 720, ओके। अभी इन तीनों में से कोई और आंसर होगा तो बता। मैम 6। 6, ओके। और ठीक है, अभी पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझ गया तो आंसर आप निकालोगे, और इसमें से कौन सा करेक्ट है। एक इसमें से करेक्ट है। ये 6 किसने बताया? अमोल। अमोल, ओके। तो मैं अमोल से पूछती हूँ कि आपका ये 6 आंसर कैसे आया? मैम मी हाँ, कॉम्बिनेशन केलं ABC BCA ACB CAB CBA BAC असं केलं मॅम. ओके। तो आपने ये ABC के कॉम्बिनेशन निकाले। देखो, हो मॅम. कॉम्बिनेशन अलग बात है, परमिटेशन अलग बात है। ठीक है। चेतना, येस मॅम. हाउ यू फाइंड आउट 1200? मॅम मी ए ला 8 व्हॅल्यू दिली आणि तिथून रिव्हर्स केलं 8 7 6 5 4 3. देन मी What? ABC ला परत सांग. मॅम शॉर्टकटली मी 5 चा फॅक्टोरियल काढला. 5 चा, ओके ओके. 5 चा फॅक्टोरियल तर 120 येतो मग. Oh, 1200 कसा काढला? हाँ यस 120. ओके, ठीक है। विष्णु एंड सूरज, आप बताओ 336 कैसे आया? यस मैम। मैम 8p3 निकालेंगे तो वहां से आएगा फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 5 कर देंगे फिर क्या से क्या सॉल्व कर क्या क्या निकाला? 8p3 मैम 8p3 8p3 3, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5। अच्छा। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5। यस मैम, इसी को हम तो सॉल्व ये करेंगे। हो गया आपका 8 5। यस ये आ गया 336। पूजा, आपका आंसर मॅम बताओ। येस येस मॅम, आपल्याकडे 8 कॅरेक्टर्स आहेत पूर्ण स्ट्रिंग मध्ये. मग आपल्या म्हणजे मस्ट आपल्याला ABC पाहिजे प्रत्येक स्ट्रिंग मध्ये, म्हणून ABC ला 1 युनिट कन्सिडर केला आणि बाकीचे जे 5 रिमेनिंग राहतात, मग टोटल आपले लेटर 6 होतात. मग मी 6 चा फॅक्टोरियल काढला. ओके, 6 चा फॅक्टोरियल काढला. हा किती आला? 720. 720, ओके. तर 6 चा फॅक्टोरियल तू का काढला परत सांग. बिकॉज मॅम आपल्याकडे ABC मस्ट हवी, ही स्ट्रिंग मस्ट हवी ना प्रत्येका कॉम्बिनेशन मध्ये. मग आपण याला हा. 1 युनिट कन्सिडर करायचं हा, आणि बाकीचे 5 लेटर्स विथ कॉम्बिनेशन विथ परमिटेशन ओके टोटल सर्व 6 होतील. ओके ओके, ठीक है. So this one is the right answer. See, how many permutations of letters contain the string ABC? String चाहिए, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसमें ABC तो चाहिए ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसे ऐसे एक स्ट्रिंग ली D A B C E F G H, ये एक वे हो जाएगा. दूसरा वे हो जाएगा ABC जो दिया है वो D E F G H, ऐसे कितने. तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग तो हमें चाहिए ना, हर इसमें ये कॉम्बिनेशन, ये ऑर्डर्ड है, ये नहीं बदलने वाला है. तो इसको एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है. तो बाकी कितने ऑब्जेक्ट्स बचे? ये 2, ये 3 4 5 और 6. तो एक हमारी स्ट्रिंग ABC की और
बाकी 5, इसलिए 6 हो गए ये ऑब्जेक्ट और इसलिए 6 का फैक्टोरियल निकाला और ये हो गया 720. इसलिए number of permutations are 720. 720 permutations of the letters A, B, C, D, E, F, G, H contain the string ABC. Pooja's answer is right. Because the letters A, B, C must occur as a block. Yes. We can find it by number of permutations of 6 objects. One block ABC and the individual letters D, E, F, G and H. And these 6 objects can occur in any order. Therefore, 6 factorial equals to 720 is the number of permutations of the letters. Okay? So now next, Okay, we have to discuss combinations. ये हो गया permutations जहां पर order matter करती है. अब combinations आता है जहां पर order matter नहीं करती. So combinations भी हम एक example के through understand करेंगे. How many different committees of 3 students can be formed from a group of 4 students? 4 students हैं तो उसमें कितनी कमिटीज बनेंगी? तो यहाँ पर अगर हमने स्टूडेंट्स को नाम दिया है, जैसे सपोज S1, S2, S3, S4. ओके, अब ये जो कमिटी बनी है 3 स्टूडेंट्स की, यहाँ पर अगर हमने ऑर्डर कंसीडर किया तो एक ग्रुप हो जाएगा S1, S2, S3. ओके, और दूसरा ग्रुप सपोज हो जाएगा तुम्हारा S2, S1, S3. तीसरा ग्रुप हो जाएगा S3, S1, S2. ऑर्डर अगर कंसीडर की तो ये जो तीन ग्रुप्स हैं, इनमें जो एलिमेंट्स है या स्टूडेंट्स है ये सेम ही है. S1, S2, S3 का ही कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर कोई ऑर्डर मैटर नहीं करती है. इसलिए ये जो ग्रुप है ये ऑर्डर कंसीडर की तो ऐसे आएगी, लेकिन हमारी कमिटी में ऐसी कोई ऑर्डर नहीं होती. 1 नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर ऐसा नहीं होता है. इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगी. तो जहां पर हमें ऑर्डर मैटर नहीं करनी, ऑर्डर ध्यान में नहीं रखना है, वहां पर हम कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं. So how many different committees of 3 students can be formed from a group of 4 students? So to answer this question, we need to find the number of subsets with 3 elements from the set containing 4 students. So we can see that there are how many subsets? 3 के combinations के कितने subsets आएंगे? 4 आएंगे, right? Because choosing 4 students Yes. is same as choosing 1 for the 4 students to leave out the group. एक स्टूडेंट को निकाल देंगे ग्रुप में से तो जितने वेज बचेंगे तो वही हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स होगा. तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं. जैसे हमने पिछले परम्यूटेशन में नोटेशन लिखा था, वैसा ही नोटेशन हम यहाँ पर भी लिखेंगे. दैट इज कॉल्ड एज आर कॉम्बिनेशन. तो आर कॉम्बिनेशन मतलब क्या? यू कैन राइट विथ मी. एन आर कॉम्बिनेशन of elements of a set is an unordered
is an unordered selection of R elements from the set. Thus, an R combination is simply a subset of the set with R elements. We can define the combination like this. Combination denote करने के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं C of NR और उसको रीड हम ऐसे करते हैं the number of R combinations of a set with n distinct elements. Distinct यहाँ पर भी important है. Distinct elements is denoted by C of n comma R. Also can be denoted as NR. And this is called as binomial coefficient. इसका दूसरा नाम है binomial coefficient. For example, C of 4 2 कितना आएगा? 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है सेट में डिस्टिंक्ट और दो दो के ग्रुप्स निकालने हैं, बनाने हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? मैन्युअली कर लेते हैं. सपोज हमारे पास सेट है A B C D. इस सेट में से सबसेट्स दो दो के निकालने, तो कौन कौन से आएंगे? A B S C A D. सबसेट है इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ A A B B S C A C और A D A D A D ये B A B A. ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऑर्डर्ड नहीं है. ऑर्डर्ड होता तो ये आता. B C टोटल 6 कॉम्बिनेशन होगा मैम. B C B comma C हाँ B C B D B D C के बाद B C D और तो कितने आ गए ये? 1 2 3 4 Six. 5 और 6. So 6 combinations are there. This is called as 2 combinations of ABCD. That are 6 subsets. Okay. तो के लिए हमारे पास थ्योरम है और कोरोलरी है, जैसे परम्यूटेशंस के लिए थी. तो ये थ्योरम हमारा बोलता है कि द नंबर ऑफ R combinations of a set with n element where n is a non-negative integer and R is an integer with 0 less than or equal to R less than or n
इक्वल्स टू n, मैम इक्वल्स टू और लाइट इक्वल्स. नहीं दिसते. लाइट दिसत नाही मॅम. ओके ओके मागची ओके व्हॅल्यू दिसते. ठीक है, शेयर कर देंगे. The number of R combinations of a set with n elements where n is a non-negative integer and R is an integer with 0 less than or equal to R less than or equal to n equals C of nr equals to n factorial upon R factorial into n minus R factorial. Next, okay, we will see some examples of combinations. First example है how many hands of. अब ये पोकर हैंड्स एक गेम है जो मुझे भी पता नहीं है कैसे खेलते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये कोई तो भी कार्ड का गेम है. How many poker hands of 5 cards can be dealt from a standard deck of 52 cards? Also, how many ways are there to select 47 cards from a standard deck of 52 cards? अब अगर आपने एग्जाम्पल रीड किया तो यहाँ से आपको कहीं से भी नहीं पता चलता है कि आपको परमिटेशन निकालना है कि कॉम्बिनेशन निकालना है. तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैथ्स के है कि आपको एग्जाम्पल समझना चाहिए. अगर आपको एग्जाम्पल समझता है तो आपको उसका आंसर कैसे निकालेंगे ये याद आता है और फिर आप वो मेथड यूज करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा. How many poker hands of 5 cards can be dealt from a standard deck of 52 cards? हमारे कार्ड के पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, वहां से हमें 5 कार्ड्स निकालने हैं सपोज. तो आपको पता है कि 5 कार्ड्स कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 या किंग क्वीन जोकर लाइक दैट. तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करती है, तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ वेज निकालने हैं ये ग्रुप का, 5 कार्ड्स के ग्रुप का. तो इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशंस. Because the order in which the 5 cards are dealt from a deck of 52 cards doesn't matter. Okay, ये मैटर नहीं करता है. तो हमें कॉम्बिनेशंस निकालना है, तो कॉम्बिनेशंस के लिए C नोटेशन यूज करेंगे. तो यहाँ पर n कितना है और R कितना है. n कितना है पहले क्वेश्चन में 52. यस करेक्ट. 52. R कितना है, R कितना है 47. 47. पहले क्वेश्चन में 5. 5 है ना. 5. पहले यहाँ तक ही पहला क्वेश्चन है ना. हाउ मेनी पोकर हैंड्स ऑफ 5 कार्ड्स कैन बी डील फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. और दूसरा है ये हाउ मेनी वाला, वो तो मैंने पढ़ा भी नहीं अब तक. तो यहाँ पर 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स निकालने हैं. तो हमारा कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला क्या बोलता है, ऊपर क्या लिखूं मैं न्यूमरेटर में फैक्टोरियल 52 52 फैक्टोरियल और नीचे
5 factorial 5 52. factorial 5 into minus 57 5 factorial 2 factorial. minus 5 52 minus factorial. तो ये आ जाएगा 52 factorial upon 5 factorial into 47 factorial. अभी यहाँ पर 52 तक 52 का फैक्टोरियल निकालो, फिर 5 का फैक्टोरियल निकालो, 47 का फैक्टोरियल निकालो और फिर वो करूँ। इससे अच्छा तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर 52 into 51 into 50 into 49 into 48 किया और 47 का फैक्टोरियल निकाला और यहाँ पर नीचे 5 का फैक्टोरियल निकाला और 47 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दिया, तो ऊपर का 47 और नीचे का 47 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो तो जाएगा। जब ये आप सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि जो बड़ा है ना न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में जो बड़ा है वहां तक ही ऊपर वाले को लेकर जा, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बच जाएगा। तो अभी कैलकुलेट करेंगे इसको। सिंपल है। अगर मैं ये 3 और 51 कर दिया या फिर मैंने 4 और इनके कुछ लिए तो छोटा नंबर हो सकता है 52 452 4। आंसर क्या आएगा? ये 413 50 ओवरऑल आंसर आएगा मैम 23390 बताओ अभी ये लास्ट वाला क्या बताया आपने आंसर? 2330 2330 390 मैम 23390 640 ओके। कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हो? यस मैम। तो ये आंसर रॉन्ग है। इसको देखो छोटा कर लो। अभी आप ये अगर 3 कट किया तो ये यहाँ पर 17 लिख सकते हो आप। 51 यस फिर ये जो है 5 कट किया तो यहाँ 10 लिख सकते हो आप। 10 ये 2 4 कट किया तो यहाँ पर 26 लिख सकते हो आप। 26 ओके। yes और 48 है, ये 4 कट किया तो यहाँ पर 12 लिख सकते हो आप। तो सब चला गया तो यहाँ पर हमारा आ गया 26 into 17 into 10 into 49 into 12। अब करो। अब कैलकुलेटर यूज करो और नंबर निकालो। बोलो क्या आता है नंबर? you need to fix it ma'am, you know 896 क्या? 2598960 2598960 960 ये करेक्ट आंसर। ठीक है। तो देखो ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कैलकुलेशंस करने के लिए। मेरे सामने बुक है, बुक में ये सारे आंसर्स है और जब मैं ये स्लाइड्स बनाती हूँ तो ये भी मैंने करके रखा होता है। फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्यों बोलती हूँ, मैं क्लास में भी ऐसा ही करती हूँ क्योंकि सब कुछ अच्छे से आ गया। ये सी भी लिख दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, यहाँ तक आ गए और फाइनल आंसर में कैलकुलेशन करते वक्त अगर ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया तो क्या होगा? 1 या 2 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। yes मैम। अब जब मैं आपका आंसर शीट चेक कर रही हूँ सपोज,
तो मैंने ये देख लिया, ये फॉर्मूला देख लिया और ये आंसर देख लिया, तो मुझे क्या लगेगा, ये सब अंदर का सब कुछ अच्छा ही है, सही है, तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन करने की आदत सबको चाहिए, हर एक को चाहिए, किसी को पूछकर नहीं लिख सकते हम यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो आंसर गलत आता है। इसीलिए इंडिविजुअली हर एक ने ये कैलकुलेशन करना है। अब आपको मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। आपके सुपर सीनियर होंगे, मतलब हर एक क्लास में जैसा क्लास आता है, अभी हम लोग फिजिकली सामने नहीं है, लेकिन हर एक क्लास में ऐसे एक दो बच्चे होते थे। अब ये अगर मैंने क्वेश्चन पेपर निकाला है, तो क्वेश्चन पेपर में एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, कुछ भी हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो हर एक का सैंपल आंसर सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ता है। तो मैं क्या करती थी, आपके सुपर सीनियर्स में दो बच्चे थे, एक ऋषिकेश चौधरी था और एक ऐश्वर्या जैन थी। मुझे पता था कि ये अच्छे से करते हैं, हैंडराइटिंग भी अच्छा था, सॉल्व भी अच्छा करते थे, तो इन दोनों का पेपर मैं पहले चेक करती थी। इन दोनों के पेपर में मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते थे, तो वही मेरा सैंपल सॉल्यूशन हुआ करता था, फिर से नया बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ऐसे बच्चे मुझे हर क्लास में मिलते हैं, तुम्हारे क्लास में भी मिलेंगे। ओके, तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये कैलकुलेशन करो और इसका आंसर बताओ, तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ कॉमन मिस्टेक्स कैलकुलेटर यूज करने में ही होती है। मैन्युअली तो करेंगे नहीं इतना बड़ा प्रोडक्ट, हम कैलकुलेटर्स ही यूज करेंगे, तो कैलकुलेटर्स यूज करना भी आना चाहिए, जो हमें आता है, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है यूज करने की। तो इसीलिए हर स्टूडेंट ने ये सब कुछ खुद करके देखना है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट 5 players from a 10-member tennis team to make a trip to a match at another school? 5 प्लेयर्स 10 मेंबर की टीम में से सिलेक्ट करने हैं। आप बताओ। कॉम्बिनेशन मैम, कॉम्बिनेशन 10 आएगा, 5 ऑर्डर डजंट मैटर। तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 में से कितने लेने हैं, 5। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से आएगा ना। यस मैम। ओके, अब अगर हमको बहुत ज्यादा जल्दी है और हमने ऐसे सोच लिया, समझो इसको 5 है नीचे, तो मैं उसको भी 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल कर देती हूँ, और 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल है, दोनों को कैंसिल कर देती हूँ और 1 आ जाएगा। ऐसे किया तो हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि पिछले एग्जांपल में मैंने बताया आपको कि बड़ा फैक्टोरियल कैंसिल आउट करना है। नहीं मैम, ओके, कॉमन लेना होगा। फिर ये कैसे करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर फिर 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, आउटपुट क्या, आंसर क्या आएगा इसका, 252। यस, इट इज करेक्ट, 252। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। Suppose that there are 9 faculty members in the mathematics department and 11 in the computer science department.
How many ways are there to select a committee to develop a discrete mathematics course at a school if the committee is to consist of 3 faculty? कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये नहीं, ये जो है कट पेस्ट में आधा ही हुआ है, थोड़ा बाकी रह गया इसका. ये पूरा नहीं है. School if the committee is to consist of 3 faculty members, मैं कंप्लीट कर देती हूँ ये, members from the mathematics department and 4 from the computer science department. ओके अगर ये सेंटेंस नहीं दिया होता कमिटी 3 फैकल्टी, तो ये 3 फैकल्टी कहाँ से लेनी है? मैथमेटिक्स में से लेनी है कि कंप्यूटर साइंस में लेनी है? अधूरा था. यस मैम. तो हम एक जगह पर आकर अटक जा सकते थे. Suppose that there are 9 faculty members in the mathematics department and 11 in the computer science department. How many ways are there to select a committee to develop a discrete mathematics course at a school if the committee is to consist of 3 faculty members from the mathematics and 4 from the computer science? मैथमेटिक्स में 9 है, 11 में कंप्यूटर साइंस में 11 है. और how many ways to select a committee to develop discrete mathematics course at a school if committee consists of 3 members मैथमेटिक्स के हैं और 4 members कंप्यूटर साइंस के, मतलब 7 members की कमिटी है. ओके और टोटल कितने हैं? 9 + 11 मतलब 20 है टोटल. तो आप मुझे ये बताओ कि अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालोगे या टोटल कर लोगे? 20 में से 7 करोगे या 9 में से 3 और 11 में से 4, ऐसा करोगे कि 20 में से 7 करोगे? डिफरेंट करून मल्टिप्लाय करायचं. 20 मधनं 7. 20 मधून जर 7 घेतले ना तर असं होऊ शकतं की फक्त मॅथमॅटिक्सचेच निवडले गेले किंवा फक्त कॉम्प्युटर सायन्स मधलेच घेतले गेले, असे होऊन जातील ना ते एकत्र केले तर. 2 कॉम्बिनेशन्स लागतील ना मॅम. 2 combinations लागतील. So here see there are 2 things. First thing कि हम टोटल नहीं कर सकते क्योंकि अगर टोटल किया तो ऑर्डर तो नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे हो सकता है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस की कमिटी मेंबर आ गए या फिर मैथमेटिक्स की कमिटी मेंबर आ गए. तो हमें ऐसी कमिटी नहीं चाहिए. हमारी कमिटी में कंपलसरी 3 मैथमेटिक्स के चाहिए और 4 कंप्यूटर साइंस के चाहिए. तो कॉम्बिनेशंस आएगा लेकिन 2 अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकालेंगे. तो पहला कॉम्बिनेशन आएगा हमारा C9 3 और दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा हमारा C11 4. ओके अभी ये फॉर्मूला तो आपको पता है. अब इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी उसका क्या करना है बाद में सोचते हैं. पहले आप C9 3 बताओ मुझे क्या आएगा आंसर? 84. यस करेक्ट. C11 4 बताओ. 330. 330. यस करेक्ट. सब लोग साथ में है ना? यस मैम. सब लोग कर रहे हैं साथ में? यस मैम. और टाइम दो, और टाइम दो ये निकालने के लिए. अब ये है 84 और ये है 330.
अब इन दोनों को कोरिलेट कैसे करेंगे? एडिशन करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे? एडिशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन। एडिशन तो क्यों और मल्टीप्लिकेशन तो क्यों? एडिशन क्यों करे बोलो? वो एक में तो कर लिया गया उतना। एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि एडिशन किया तो क्या होगा, ये 84 और 330 अलग अलग हो गए, लेकिन हमें ऐसे नहीं है, यहाँ पर 84 वेज है और यहाँ पर 330 वेज है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर्ड, ये 84 और 330, फिर 330 और 84। यहाँ पर पहले के लिए, पहले 3 मेंबर्स के लिए हमारे पास 84 चॉइसेस है और फिर 4 मेंबर्स के लिए हमारे पास 330 चॉइसेस है, तो यहाँ पर एडिशन सम रूल नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये निकालने के लिए हमें ये C of 9-3 into C of 11-4 ये कॉम्बिनेशन लगेगा, जो हमें 84 into 330 का प्रोडक्ट कराएगा, और इसका आंसर क्या आएगा? 27720। 27720. This is the way we can solve the example. Okay. ओके मैम। अब आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लेने हैं। यस। आप लिखो वो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 permutations of a set with 9 elements. आपको 5 परम्यूटेशंस का निकालने हैं 9 एलिमेंट्स में से। एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज क्वांटिटीज। ये जो क्वेश्चंस है हमारे बुक के लास्ट में एक्सरसाइज में दिए हैं। बहुत एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पर, आपको बहुत एक्सरसाइजेस मिलेंगी, उसमें से एक दो मैं यहाँ पर देती हूँ आपको। तो आपको निकालना है P of 6-3, फिर P of 6-5, देन P of 8-1। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की प्रैक्टिस के लिए है। D C of 5-1, E C of 8-8 और C of 8-0। ओके, इसके आंसर्स आपको निकालने हैं और अपने ग्रुप पे डालना है। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट। Let me stop recording.